Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Semester 2, Chapter 2, India, Climate and Natural Resources Part 2. This video is for GSCB syllabus. So friends, in last video we talk about location of India, seasons of India. With that we talk about water resources. Now in this video we are going to talk about mineral resources. So let's start the video. First, understood the definition. What is the definition of mineral resources? So concentration of minerals that has resonate prospects for economic extraction, location, quantity, grade and continuity are interpreted from geological evidence by a QP. Inferred mineral resource, that part of a resource of which quantity and grade of quality can be estimated from geological evidence, limit sampling and reasonably assume geological and grade continuity based on auto outcrops, trenches, working and drill holes must be excluded from estimated for economic studies. Indicated mineral resources. So these are the things that you will study in higher standard, but for your information only I put here. In short, mineral resources are defined as a occurrence of natural, solid, inorganic or fossilized organic material in or and the earth's crust in such form and quantity of such a grade or quality that it has रिजनेबल प्रोस्पेक्ट फॉर अ इकोनॉमिक इंटरेक्शन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो मटेरियल हमें अर्थ सरफेस से मिलता है, जो इनऑर्गेनिक है, सॉलिड फॉर्म में है, हो सकता है सेमी लिक्विड फॉर्म में भी हो या तो फोसिल फॉर्म में भी हो, तो उसको हम मिनरल रिसोर्स बोलेंगे. According to textbook, biotic and abiotic materials below the surface of the earth are transformed into minerals having different chemical components due to intense heat and pressure. This treasure trove of minerals is formed in the core of the earth through natural processes lasting for thousands of years. Minerals below the earth are not found in their pure form. There are many impurities present due to which they are called ores. For example, iron ore. Only after the refining of the ore we get mineral in their pure form. This mineral form the foundation of the economic might and prosperity of a country. तो कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट कितनी होगी, उसका ग्रोथ कहाँ तक जाएगा, वो डिपेंड करता है वो कंट्री के लैंडफॉर्म के अंदर कितनी टाइप की कितनी क्वांटिटी में मिनरल्स है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया आज से 100 ईयर्स पहले पूरा डेजर्ट रीजन था, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, रहना भी नहीं. फिर वहाँ से पेट्रोलियम मिला. आज सऊदी अरेबिया इतना अपग्रेड हो गया है, पेट्रोलियम सेल करके उन्होंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि सॉल्टी वाटर को भी फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के उनके बड़े बड़े प्लांट एस्टेब्लिश उन्होंने किए हैं. बुर्ज खलीफा देख लीजिए, या तो और बहुत सारे वहाँ पे डेवलपमेंट है. इतने डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं जितने शायद अमेरिका में भी नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास मिनरल रिसोर्स है. पेट्रोलियम वो भी मिनरल मिनरल में आता है. किस तरह से आता है वो हम देखते हैं. तो टाइप ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल कैन बी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स. मेटालिक मिनरल्स लाइक रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनम एक्सेट्रा. Non-metallic minerals like diamond, ruby, limestone, china clay, dolomite, bauxite, phosphor, gypsum, areca, calcite, silica, graphite, potash, phosphate, etc. And power generating mineral coal, natural gas, mineral oil, uranium, thorium, radium, etc. तो ये रहा मिनरल ऑयल आ गया यहाँ पे. यही बात को ये चार्ट के थ्रू डिस्प्ले की है.
तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स में अगर आए तो आपको विथ एग्जांपल ये सब लिखना है। अगर 1 मार्क में आया तो आप खाली 3 टाइप्स लिख दीजिए, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी। पर 2 मार्क या तो 3 मार्क में आए तो आपको ये सब एग्जाम्पल भी इस तरह देने पड़ेंगे। अब यही डिटेल आप इस तरह चार्ट के थ्रू डिस्प्ले करोगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी होती है, जिसका इम्प्रेशन अलग से होता है। अब यही मिनरल को देखते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है, ये टेबल में सब मिनरल्स के नाम है और कौन से मिनरल इंडिया के कौन से स्टेट में मिलती है वो है। तो स्टेट तो ऑलमोस्ट आप जानते हो, पर यहाँ पे मैंने मिनरल्स के पिक्चर्स रखे हैं। तो फर्स्ट है कॉल, ये है कॉल। फिर मैंगनीज, ये है मैंगनीज। जब रो मैंगनीज होता है तो इस तरह से होता है। फिर ये है कॉपर, फिर ये है बॉक्साइट, ठीक है। फिर ये है माइका। ये मैं सब आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉपर इस तरह का दिखता है, बॉक्साइट इस तरह का दिखता है, मैंगनीज इस तरह का दिखता है, ठीक है। माइका देखिए ऐसा शाइनिंग वाला होता है इस तरह से। ये स्पेशली आपके घर में अगर आयरन हो, जो कपड़े प्रेस करने के लिए यूज़ होती है, उसके अंदर ये यूज़ होता है। फिर है लीड, तो ये है लीड। Another example of galena and the mineral which produce nearly all newly mined lead. Nearly all lead deposit contain some galena, ये है लीड। फिर है लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन दो टाइप के हैं, ये देखिए यहाँ पे वाइट लाइमस्टोन और ब्लैक लाइमस्टोन, ठीक है। फिर है गोल्ड, तो ये देखिए गोल्ड के पीसेस, कच्चा गोल्ड इस तरह का होता है, फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये है मिनरल ऑयल इस तरह का। ये तो रिफाइन किया हुआ है, पर वो किस तरह से निकलता है 9th स्टैंडर्ड में, इस स्टैंडर्ड में आपको ये पूरा पढ़ने में आएगा। इस तरह से ड्रिलिंग होता है, ये ओशन बेड है जहाँ से नेचुरल गैस भी निकलता है और मिनरल ऑयल भी इस तरह से उसको पाइपलाइन के थ्रू फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। इस तरह से मिनरल ऑयल को निकालते हैं। और है थोरियम, ये देखिए थोरियम इस तरह से दिखता है। अब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो कोल जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में मिलता है। मैंगनीज जो है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में है। कॉपर जो है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय में है। बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में है। माइका जो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। लीड जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। लाइमस्टोन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। गोल्ड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार। और थोरियम जो है राजस्थान और झारखंड में मिलता है। तो ये टेबल आपको नोटबुक में पूरा ड्रॉ कर देना है और ये प्लेसेस आपको याद रखनी है, मैप वर्क में आ सकती है। नाउ यूजेस ऑफ मिनरल, मिनरल्स के यूज़ क्या है। तो आज के डेट में तो मिनरल के बिना कोई एक्टिविटी ही नहीं होगी। द रेशियो ऑफ द डेवलपमेंट एंड growth of the economy of any country depend on the quantity of the mineral found into that country। कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितना होगा, कहाँ तक होगा, वो डिपेंड करता है उनके मिनरल डिपॉजिट के ऊपर। तो मिनरल के अलग अलग यूज़ है, जैसे मैंगनीज इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स, मटेरियल, colored glass, coins and printing industries. Bauxite is used in electric material, colors, aeroplanes, purification of kerosene and making of cement. Mica is used in making radio, telephone, airplane, gramophone, soundproof curtains. Fluorspar is used in mineral
melting industries, plastic industries, hydrochloric acid, and in making things from China clay. So these are the such type of minerals and their different kind of uses. इसके हिसाब से सभी मिनरल्स का कुछ ना कुछ यूज़ होता ही है. Minerals are a component of everyday life because they are a part of everyday objects. Jewelry में diamond are used in industrial adhesive cutting tools. Some minerals are used to produce specific type of laser light. Quartz is used in electronics. Mineral that contain useful substance can be mined. जैसे बॉक्साइट जो है उसमें से एल्यूमिनियम मिलता है, एलामाइट में से टाइटेनियम मिलता है. तो एक मिनरल से दूसरी भी मिनरल मिल सकती है. यहाँ पे भी मिनरल आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. Silicon used in the computer industry in obtained from the quartz. Aluminum obtained from its or bauxite used in the automobile, aeroplane, etc. तो ये सब अलग अलग यूज़ है मिनरल के. इसके अकॉर्डिंग आप भी एक चार्ट बना सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए कि अलग इसके अलावा जो मिनरल्स है उसका यूज़ क्या है विथ फोटोग्राफ्स. अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्स की. तो यहाँ जितने भी फॉरेस्ट के नाम हैं ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. अ लार्ज एरिया कवर्ड chiefly with numerous trees and undergrowth is called a forest. Forests are an invaluable source of wealth of a nation. There are different type of forest in India because of its psychology, physiography and climate. There are 5,000 type of trees in India. India ranks 10th in the world in terms of the availability of the variety of vegetation. Since ancient times, India is renowned for medical herbs. There is mention of almost 2,000 varieties of herbs and trees in Ayurveda. 2,000 टाइप के हमारे पास हर्ब्स और ट्रीज है जिसको हम मेडिसिन के जैसे यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो 6 मेन टाइप हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिड्यूज मॉनसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, डेजर्ट वेजिटेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ हिमालय. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है. पूरा ग्रीन होता है. दिस फॉरेस्ट ग्रो इन एरिया वेयर रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर पर ईयर. They include the tropical semi-evergreen forest and tropical evergreen forest. The trees do not have any particular season to cast off their leaves. The forests are also known as archetypal rain forest. तो ये फॉरेस्ट के लीव्स जो है वो शेड नहीं होते, यानी एक ही टाइम पे एक ही सीजन में सब ट्रीज अपने लीव्स शेड नहीं करते, इसलिए पूरा साल ग्रीन दिखता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एवरग्रीन फॉरेस्ट. Evergreen forests are found in northern eastern parts, mountainous region and the Andaman and Nicobar island of India. Evergreen are so named as there is no particular season of the trees to shed their leaves. Therefore, these forests remain green throughout the year. These trees are usually 30 to 35 meters in height. Bamboo, teak, sal, mahogany and sisam are the main trees of this forest. Second is deciduous forest. They cover a greater part of India. They found in region where the rainfall is between 75 cm to 250 cm. It forms 65.5% of the total area of forest. Since India is having monsoon climate, this type of forest is distributed widely. They shed their leaves during dry winter. They are also called tropical deciduous forest. तो ये 5 मार्क में आंसर आ सकता है, इतना बड़ा ये आपको याद रखना है. Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain ranges, the Satpura hills, the foothills of the Himalayas, the foothills of the eastern and western Ghat of India. The main trees of this forest are teak, sal, mahuda, banyan and peepal. These trees shed their leaves in autumn. Next है mangrove forest. These forests are formed due to tides. They are found along the deltas and estuaries of rivers that are subjected tides.
The deltas of river Ganga, Godavari, Mahanadi and Krishna have their forest. In Ganga Delta there are plenty of Sundari trees and hence the forests are known as the Sundarbans. The total area of mangrove forest is 4.4 thousand kilometers square. The tidal or mangrove forests are most luxuriant around the delta area of large rivers and in sheltered bays where the annual rainfall is very high. The Indian tidal or mangrove forests are mainly situated on the Gangetic Delta and in coastal plains in West Bengal called the Sundarbans. Mangroves, sundari, palms, केवड़ा, चेयर grow in this forest. तो ये सब उसके टाइप है कि कौन से टाइप के फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं. फिर कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, तो ये है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट. Coniferous trees are triangular shaped and the branches are soft and flexible. As a result, no slice of the tree without breaking its limbs. तो इसके जो आप क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं उस टाइप के होते हैं, जिस ये जो इसकी ब्रांचेस होती है वो सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है. जैसे ही स्नो ऊपर से गिरेगा ये झुक जाएगी और स्लो स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा. इसकी वजह से इसको डैमेज नहीं होता है. तो ये जनरली हमें मिलते हैं. कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयाज. ये जो हिमालय का रीजन है ये वाला, ये हिस्से में आपको ऐसे फॉरेस्ट मिलेंगे. देवदार, पाइन, स्प्रूस एंड बीच ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट. और लास्ट है डेजर्ट थ्रोनी फॉरेस्ट. तो ये हमारे राजस्थान वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये पूरा एरिया है यहाँ पे ये मिलेंगे. This type of vegetation is found in region where the annual rainfall is less than 50 centimeter. Rajasthan's Thar Desert and the adjacent part of Punjab, Haryana and Gujarat have this type of vegetation. The trees which grow here are short, have deep root and thick leaves and thorns. Date palms are commonly near the oases. Babul, palm and cactus are the important trees. तो इसके leaves छोटे होते हैं और उसके ऊपर थ्रोन होते हैं यानी कांटे होते हैं. द थ्रोनी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश. ट्रीज लाइक स्पाउज, कैक्टस, अकाकिया एंड कैपर आर फाउंड हियर. तो कैक्टस के प्लांट तो आपके घर पे भी देखने को मिल जाते हैं. तो ये 5 टाइप के फॉरेस्ट है. ये पूरा का पूरा आंसर 4 मार्क के आंसर में क्वेश्चन में आ सकता है. अब फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस वो तो आप जानते ही हो. तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन. दे प्रोवाइड अस विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री. बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबन फॉरेस्ट. Basket, mats, toys, furniture and artistic things are made from bamboo. Brooms are made from palm and date leaves, जो झाड़ू आपके घर पे होता है वो. While catechu is made for catechu trees. Paper pulp is made from deodar trees and turpentine is made from cheat trees. Turpentine जो होता है वो कलर में यूज़ में आता है. Tea boxes, mastics, sports equipments, artificial fiber and filament are also made from deodar and cheat trees. Sealing wax is used for making varnish, ink for printing, material for electronic devices and gramophones. Forests are very essential natural resource. They provide raw material to industries such as timber, bamboo, cane, gum, medicinal plant, shrubs, etc. दे प्रोवाइड फोडर टू एनिमल्स. तो फॉरेस्ट का तो जितना भी यूज़ और इम्पोर्टेंस आप समझो उतना कम है. फॉरेस्ट हैं तो ये लाइफ साइकिल अर्थ के ऊपर चालू है. जिस दिन सब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी अर्थ एक वापस फायर बॉल बन जाएगा. फॉरेस्ट को क्यों बचाना चाहिए? Many measures have been undertaken for the conservation and protection of forests. They are: cutting down of trees is forbidden. Several punishment will be given to those who cut tree illegally.
Trees should be grown on wasteland and people should be motivated towards afforestation. Sources of energy like solar energy, biogas, wind energy, and other renewable sources of energy should be used more. People should be alert and made aware about afforestation and necessary help should be provided. More forest research institutions should be established to develop the forest scientifically. The environment should be created that compels every Indian to work with responsibility toward the protection of forest. अब यहाँ पे एक पिक्चर है. To cut a tree is to kill a man. Cutting tree lead to killing lives. यानी आप ट्री को कट कर रहे हो, इसका मतलब है आप एक लाइफ को किल कर रहे हो. Cutting down dried up and absurging trees which causes forest fires. Protecting against disease. Planting saplings. Sowing seeding. Gardening against illegal cutting of trees. Avoid domestic animal to grazing in the forest. Creating awareness among people. Social forestry project. तो ये सब मेथड है और ये एक सबसे बेस्ट हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी कंट्री या तो हमारी अर्थ की हम रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें. तो उसके लिए फॉरेस्ट चाहिए. जब तक हम ट्रीज़ को सेव करेंगे तब तक हम हमारी लाइफ को सेव कर रहे हैं. वैसे तो कंपलसरी ऐसा होना चाहिए. मैं तो हर साल अपने क्लास में एक कंपलसरी प्रोजेक्ट देता हूँ कि हर एक स्टूडेंट एक प्लांट ग्रो करेगा कंपलसरी. एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पिक्चर्स उनको कलेक्ट करने होते हैं, डेली पानी उनको देना होता है, जो भी मैन्योर देना है, कैसे केयर करनी है, उसके आपको फ़ोटो लेने और फिर लास्ट में एक प्रोजेक्ट बना के मुझे सबमिट कराना होता है. वाई? बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज एंड हर एक को अपनी लाइफ में एक ट्री तो ग्रो करना ही चाहिए. तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आपके एसएस में कितने मार्क आते हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं है, पर आप ये देख के कितना सीखते हो, उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज़ द रियल रिजल्ट ऑफ रियल एजुकेशन. तो जिन लोगों ने अभी तक एक भी प्लांट ग्रो नहीं किया है, दे विल स्टार्ट टू ग्रो प्लांट इमीजिएटली एज सुन एज पॉसिबल. राइट? तो ये है फॉरेस्ट रिसोर्स, लैंड रिसोर्स. अब वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में बात करते हैं. द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, अब फॉरेस्ट जितने डेवलप्ड होंगे उतनी ही वाइल्ड लाइफ भी डेवलप्ड होगी बिकॉज दे आर इंटरेक्ट टू ईच अदर. द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एंड वेरिड. Different species of bird and animals from all over the world are there in India. The variety of wildlife found in India increases the natural beauty of the country. तो इंडिया में इतने अलग अलग टाइप के 5000 टाइप के अलग अलग ट्रीज़ है, इतने सारे फॉरेस्ट है, तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ जो है वो भी काफ़ी डेवलप्ड है. तो एलिफेंट, ये रहा एलिफेंट. ये सब मैंने जितने भी ये पेज में नाम लिखे हैं वो सब यहाँ पे मैंने रखे हैं बिकॉज यू रिकॉग्नाइज दैम. Elephants are found in Karnataka, Kerala and Assam. It is the largest mammal of India. They are used to carry wood and other goods from one place to another in forest. The one-horned rhino, ये रहा. This is one horn. The one-horned rhino found in India is a unique animal. They are found in the marshy areas of Assam and West Bengal. The wild ass is found in the run of Kutch and the camels in the desert area. तो वाइल्ड एस कुछ इस तरह से होते हैं जो रन ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेंगे. Both lions and tigers are found in India. Asiatic lions are found in the Gir forest of Gujarat. तो ये है एशियाटिक लायन का फोटो. दिस वन. द टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर. तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर. ये देखिए इस तरह का दिखता है. द टाइगर ऑफ वेस्ट बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर आर वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड. Tigers are found in Madhya Pradesh, West Bengal, Uttarakhand and in some area of the Himalaya.
द टिबेटियन बियर आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड इन द डेडियापाड़ा फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो ये है टिबेटियन रीजन बियर। ये देखिए इस तरह से दिखता है, बहुत डेंजरियस होता है, हैवी भी बहुत होता है ये। द लेपर्ड, हैनास, ब्लू बुल, वुल्फ, ब्लैकबक, डियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इंडिया। तो ये है सब, ये लेपर्ड, ये हैनास है, ये ब्लू बुल है, नीलगाय जिसको बोलते हैं, और ये है ब्लैक बक, ये, और डियर यहाँ पे है। ये वुल्फ है, दिस इज वुल्फ, दिस इज ब्लैक बक, दिस इज डियर। देख लीजिए इसको, इस तरह से वो दिखते हैं। फिर है द लंगूर, गिबन, हुलॉग एंड गिबन आर द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन इंडिया। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लंगूर, ये गिबन और ये हुलुक, इस तरह से दिखते हैं। ये भी इंडिया में मिलते हैं देखने के लिए। वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया। द डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैना, pigeon, manna, etc. are the various species of bird found in India. Among the most famous bird, the peacock, the national bird, is the most beautiful bird of all. Its attractiveness is due to its beautiful feathers. तो यहाँ पे ये सब है, ये डक है, ईगल है, पैरोट है, मैना है, पिजन है, पैरट, पीकॉक तो आपने देखा ही होगा, वो नेशनल बर्ड है, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो ये सब इंडिया में मिलते हैं, ये देख लीजिए। क्रेन्स, तो ये है क्रेन, 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर, जिसको घुरड़ बोलते हैं, ये वाला, ये देखिए, ये क्रेन है, ये घुरड़ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Which is the heaviest bird of India? Are the other attractive bird of India? The Rudi Selduck, तो ये है, जिसको सुरखाब भी बोलते हैं, ये lay their eggs in the sands of Run of Kutch. The Keola Dev Bird Sanctuary of Rajasthan is the world's biggest sanctuary where almost 2.5 lakh birds are found. The Nal Sarovar of Gujarat is famous for birds which migrate from all over the वर्ल्ड। तो फर्स्ट वीडियो में नल सरोवर का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, वहाँ पे बर्ड्स दिखे थे, वो सब यही बर्ड थे। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द मैक्रेल, तो मैक्रेल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मैक्रेल, ये है मैक्रेल। फिर ये है लॉबस्टर, ये लॉबस्टर, ये बॉम्बे डक, ये प्रॉम्प्ट, ये हैरिंग फिश, फिर है सैल्मन, ये सैल्मन, ये शार्क, और लास्ट में है डॉल्फिन, दिस इज डॉल्फिन। तो ये सब भी इंडिया में मिलती है। तो देखिए कितनी वैरायटी है हमारे यहाँ पे। सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ जितने नेशनल पार्क है उसके सब फ़ोटो हैं यहाँ पे, ये आपको नोटबुक में लिखना है, और ये मैप वर्क में भी पूछा जाएगा तो इसको याद रखना है। काजीरंगा जो है वो आसाम में है, तो ये काजीरंगा है। फिर है रन ऑफ थार, रन ऑफ कच्छ जिसको बोलते हैं, ये। फिर कान्हा, तो ये पूरा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये गिर नेशनल पार्क है। फिर ये वेलावदर नेशनल पार्क, ये केओला देव नेशनल पार्क, ये दचीगाम नेशनल पार्क, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
अब ये कहाँ पे आया है और किस लिए वो देखते हैं। काजीरंगा आसाम में है, हिप्पोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो, डियर। रन ऑफ थार राजस्थान में, वुल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, टाइगर और स्टेक के लिए। गिर नेशनल सेंचुरी गुजरात में, लायन, लेपर्ड, चीतल। वेलावदर नेशनल पार्क गुजरात में, ब्लैक बक, खाडमोर, वुल्फ, ब्लू बुल, नीलगाय जिसको बोलते हैं। केवला देव राजस्थान में, वेरियस बर्ड्स। बंदीपुर कर्नाटका में, एलिफेंट, बियर, पीग, वाइल्ड कैट। दच्चीगाम जम्मू एंड कश्मीर में, मस्क डियर के लिए। और कोरबाट उत्तराखंड में, लायन, एलिफेंट, लेपर्ड और डियर के लिए। यहाँ पे सब लोकेशन है, ये लोकेशन आपको याद रखना है। ये देखो केवला देव रिस्का कच्छ में है, ये सासनगीर, कान्हा, काजीरंगा, दच्चीगाम, कोरबाट उत्तराखंड में, बंदीपुर। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आता है। अब इसको क्यों हमें बचाना है, तो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। Merely 2% of the water on the earth is suitable for human consumption. 2% वाटर है जो हमारे काम में आ सकता है। Polluted and poisonous water released from industries are rapidly polluting the underground water. This is posing a tremendous danger for all life forms as well as the environment. Thus, alternatives means to reuse polluted water must be discovered. School and college curriculum must include forest development related content to inculcate awareness among students. तो ये आपके सिलेबस में है, उसका रीज़न ही यही है। Similarly, measures must be taken to protect forests from forest fire and minimize loss of life and property. Mineral are nature's gift to man. It is available in limited quantities and so must be utilized judiciously. Alternative means to conserve and preserve minerals must be found. Motivations should be provided to reuse mineral repeatedly. Continuous deforestation has endangered many species of wild animals. In fact, certain species are extinct in some forest areas. Birds and animals are poached for their skin, feather, bones, horns, teeth, and even meat. Illegal and merciless killing of wild animals must be controlled. Citizens must be aware of the importance of wild animals. Correct information about the environment, forest, flora, and fauna should be provided to people. Sanctuaries and national parks should be developed. People should be made aware of wildlife through natural education camp. तो ये सब इसके रीज़न हैं क्यों हमें इसको कंजर्व करना चाहिए. एज वी नो दैट नेचर प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक नीड्स विच आर नेसेसरी टू अस, बट वी आर ओवर एक्सप्लोटिंग और ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज. If we go on over exploiting the nature, there will be no more resource available in the future. So there is an urgent need to conserve the nature. Here are some needs: to maintain ecological balance for supporting life, to preserve different type of biodiversity, to preserve the natural resources for the present and future generation. तो ये सब रीज़न है, इसके बिना लाइफ नहीं होगी. अगर हमने इसको कंजर्व और प्रिजर्व नहीं किया तो फ्यूचर में अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोई भी लाइफ इसके ऊपर बचेगी नहीं. जो डेवलपमेंट के पीछे हम भाग रहे हैं, जो इतना डेवलप करने के लिए इतना हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट माइनस में आने वाला है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो. और इसी वजह से ये चैप्टर आपके सिलेबस में है. तो यहाँ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है. ये एक्सरसाइज है जो आपको कंप्लीट करनी है. क्वेश्चन आंसर है, मैप वर्क 2 है और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है. यहाँ पे अगर आपको कुछ पता ना चले देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क योर क्वेरी. अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सिविक का है, कोर्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक स्टोरी वाइज इसमें दिया है, पर हम उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. बहुत सारे नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे, नए मीनिंग्स आपको पता चलेंगे.
तो ये चैप्टर में अगर आपको कुछ डाउट हो तो यू आस्क मी योर क्वेश्चन एंड सॉल्व योर डाउट्स. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो. Till then, stay home, stay safe, take care of yourself, wash your hands many times, wear mask, and maintain social distance and pay attention to your study also. Thank you very much.